So what I'll do is I'll create a new project, new Java project. I'll call it maths project. Now inside this, in SRC, I'll create a package. I'll call it app. Inside this, I'll have class. I'll again call it app. Right. Then in my SRC, I'll again right click. I'll say new package. I'll call it maths. And inside this, I'll create a class. I'll call it maths. ठीक है, ये मैथ्स नाम इरेलीवेंट है, मैंने ऐसे ही नाम दिया है कुछ तो. राइट. नाउ what I'll do is in this maths I'll write a few functions. Right. So first function I would write public long factorial int n. So n is a parameter. Right. So this is one function which we need to write. अभी के लिए I am just returning 0. Then I'll write another public boolean is prime. Again int n, and I would say return true अभी के लिए. Then third function which we can write is say public int max, int a comma int b. Right. This will return the greater of the two numbers. तो simple if else जो है ये max में समझ में आ जाता है. Right. So I'll start writing the definitions for these. Right. तो ये max में what I'll do is I'll say कि if a is greater than b, I would say return a, else return b. राइट. तो ये सिंपल इफ एल्स कंस्ट्रक्ट है, तो जो बड़ा रहेगा वो यहाँ से रिटर्न होगा. राइट. दैट इज इट्स जॉब. नाउ फॉर फैक्टोरियल, व्हाट इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर? फैक्टोरियल इज 1 into 2 into 3 into up to n. That would be your factorial. So factorial of n would be 1 से लेके n तक हर नंबर जब आप मल्टीप्लाई करोगे, that would be the factorial. So what I would do is I'll have एक long f equals to 1. long f equals to 1. इसमें हम लोग एक्चुअल फैक्टोरियल जो है उसको स्टोर करेंगे. Then I'll have for loop. So I'll say for int I equals to 1, I less than equals to n, I plus plus. Right. And internally what I'll do is I'll say f equals to f multiplied by I. अब इसमें there is one important thing that you should note. What is it? कि मैंने जो ये इंटीजर डिक्लेयर किया है I, ये मैंने पहले बाहर कहीं नहीं किया, मैंने इंटरनली यही के यही कर दिया. राइट. सो दैट इज ऑल्सो अलाउड हियर इन जावा या इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सच लैंग्वेजेस. इट इज अलाउड. तो डिक्लेरेशन इन फॉर लूप इज ऑल्सो फाइन. Right. And at the end what I will do, I will say return f. So this should print me factorial, or this should send, or this function would be returning factorial. long मैंने डेटा टाइप क्यों यूज़ किया है? long मैंने इसलिए यूज़ किया बिकॉज जनरली फैक्टोरियल काफ़ी बड़ा होता है. राइट. तो उसके लिए आई एम यूजिंग long एज द रिटर्न टाइप. राइट. नाउ इन केस ऑफ बूलियन व्हाट आई विल डू इज, सॉरी, बूलियन का मतलब क्या है? बूलियन का मतलब ट्रू और फॉल्स है. राइट. सो नाउ व्हाट इज अ प्राइम नंबर? कैन एनीबडी टेल मी? टेल मी व्हाट इज अ प्राइम नंबर? हाँ ना. ठीक है, ठीक है, तुम यू टेक केयर.
तुम अभी कहाँ लेकर गए थे उन्हें? with a number which can be divisible by 1 in itself. So 1 in itself. लेट मी चेक, मुझे ऐसे तो पता नहीं है बट सभी जगह वो एंजियोग्राफी का पैसा लगता ही है ना, है ना। और अगर वो 90% ब्लॉकेज है बोल रहे हैं, है ना, तो यानी वो एंजियोग्राफी करा लेना चाहिए। एंजियोग्राफी एंड एंजियोप्लास्टी तुम कहाँ पर लेकर आए हो उन्हें? कुणाल नहीं पता मुझे, बट एंजियोग्राफी बोल रहे हैं वो कि एंजियोप्लास्टी बोल रहे हैं, कि एंजियोग्राफी हो गई उनकी? ओके, पर वो यानी विदाउट एनी डिले अनघा वो एंजियोग्राफी तो पहले कर लो, है ना। उसमें वो ब्लॉकेज समझ में आता है, कितना ब्लॉकेज है क्या है, राइट। देन वो एंजियोप्लास्टी का डिसीजन वो डॉक्टर बताएंगे, बट इफ़ दे आर सेइंग तो वो कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, ओके। Why is 1 not a prime number? 1 is neither prime nor co-prime, right? 2, 3, 5, 7, yes, they are prime numbers. Now, every number is divisible by itself, right? So, you cannot say that a number which is divisible by itself. But what we are saying is, what Prachit you have said, that is correct. That prime number is a number which is divisible only by itself, right? What it means is that, okay, one more question. Is a prime number divisible by a number greater, or is any number divisible by a number greater than itself? यानी 5, 6, 7, 8 इनमें से किसी से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, राइट। तो डिविजिबिलिटी चेक कौन से नंबर्स के साथ होती है? हमेशा वो नंबर के छोटे, यानी नंबर से छोटे नंबर्स के साथ होती है। एम आई करेक्ट इन सेइंग दिस? Yes, correct. So what it means is that if say your number, it is not divisible by any number starting from 2 up to the number -1, राइट। मतलब लेट्स से अगर नंबर 7 है और हमें अगर चेक करना है कि 7 प्राइम है या नहीं, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि 2 से लेके तो 6 तक किसी भी नंबर से अगर 7 डिविजिबल नहीं है, राइट, तो ही 7 प्राइम है। एम आई करेक्ट इन सेइंग दिस? Yes, correct, right. So that is the logic which we are going to apply in case of a prime number, right. So how would you do that? What is the logic? Logic is from 2 up to n minus 1, if none of the number divides n, that means n is prime number. इज इट करेक्ट? ये लॉजिक समझ में आया? लॉजिक क्या है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये जो n है हमें चेक करना है n प्राइम है या नहीं, राइट। तो वो आप कैसे चेक करोगे? आप क्या करोगे, n को हर नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप टू n माइनस 1। 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो ही जाएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 2 अप टू n माइनस 1, इफ नन ऑफ द नंबर, if n is not divisible by any of these, only then n is prime, otherwise n is not prime, right? Let us check how we would do that, right? So हमने यहाँ for यूज़ किया है, here I would use
while loop, right? So I will say int I equals to 2. 2 मैंने किस लिए लिया? 2 इसलिए लिया so that 2 से लेके मुझे n-1 तक जाना है, right? So I will have a while loop and inside this I will give the condition. What is my condition? I will say while I is less than n. लेस देन n किस लिए लिया? लेस देन n इसलिए लिया ताकि I जो है वो n-1 तक ही जाएगा, n तक नहीं जाएगा, right? What I would next check is I would say if n mod I equals to 0. Now what is modulus? What is this percentage operator? This is a remainder operator, means it gives us a remainder. So if n mod I equals to 0, मतलब क्या कि I n को डिवाइड करता है और अगर I ने n को डिवाइड कर दिया that means this is not a prime number. So I would simply say return false. Return false का मतलब क्या कि I is not a prime number, right? ये फंक्शन के बाहर निकल जाएगा. Otherwise I would simply say I plus plus. तो I plus plus से क्या होगा? ये I next I चले जाएगा. Now let us take an example. Let us say we take an example of 5. So my n equals to 5. ये example मैंने लिया, right? तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले it will check if 2 is less than 5, true or false. So 2 is less than 5, that is true. Then यहाँ check होगा if 5 mod 2 equals to 0, right? तो 5 2 से divide होता है क्या? नहीं होता, right? So this condition would be false and I would become 3 I plus plus करने की वजह से. Then again it will check, ये पहली बार check किया 2 less than 5, right? Which is true, right? Then यहाँ आया, यहाँ आके उसने क्या check किया? यहाँ आके उसने check किया कि n mod I equals to 0, यानी 5 mod 2 equals to 0. This will lead to false. Because this is false, ये if के अंदर नहीं जाएगा, it will come here, it will become 3. Now 3 के लिए check होगा 3 less than 5. Again this is true. ये true होने की वजह से यहाँ वो check करेगा 5 mod 3 equals to 0. Is it true or false? 5 mod 3. Again this is false. I'll write 5 mod 3. This is again not equals to 0. मतलब 3 5 को भी divide नहीं करता. फॉल्स हो गया तो वापस ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, एल्स में आएगा. आई विल बिकम 4. 4 हो गया, फिर 4 लेस देन 5. नेक्स्ट थिंग विच इट वुड चेक इज, राइट? नाउ दिस इज ऑल्सो ट्रू. अब यहाँ आएगा, यहाँ क्या चेक करेगा? 5 mod 4. दिस वुड ऑल्सो बी फॉल्स. ये 3 नहीं है, ये फॉल्स है. 5 mod 4, it will also be false. So again I will become 5. Then 5 less than 5. 5 less than 5. Now this would become false now. तो ये while के अंदर नहीं जाएगा, ये loop के बाहर चले जाएगा और इधर आएगा and it will return true. What it means? That 5 is not a prime number. What it means is that 5 is a prime number. मतलब ये true return कर रहा है. Let us take an example of 6. If my n is 6, तो क्या होगा? सबसे पहले I 2 है, तो 2 less than 6, true or false? It is true. It will come here, it will check 6 mod 2 equals to 0. This time it would be true because 6 is directly divisible by 2, तो it will directly return false. तो ये बाकी कुछ होगा ही नहीं. मतलब क्या कि 6 is not a prime number. ऐसा होगा. अब इसको चेक कैसे करेंगे? ये लॉजिक समझ में आया? हमने क्या लॉजिक यूज़ किया है और कैसे यूज़ किया है? राइट है ना? तो सिंपल लॉजिक है. लॉजिक क्या है कि जो भी मेरा n है, जैसे मुझे चेक करना है कि वो प्राइम है या नहीं, तो मैं उस n को 2 से लेके तो हर नंबर से डिवाइड करता हूँ, राइट? इसीलिए मैंने क्या किया, एक लूप लगा दिया, राइट? और हर नंबर से 2 से स्टार्ट किया, हर नंबर से डिवाइड करने की कोशिश किया. अगर कोई भी एक डिवाइड करता है, कोई भी एक, तो आई सिंपली रिटर्न फॉल्स, मीनिंग दैट इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर.
नहीं तो मैं अगला नंबर until n-1 का हम लोग चेक करते हैं. If none of them divides, I return true, otherwise I return false. Right? That is a very very plain and simple logic which I am trying to implement. Right? So to check this, what I'll do is I'll go into my app में I'll say public static void main and a string array, and I'll give args. Now what I need to do is I need to create an object of maths. So I would say import maths dot maths, बिकॉज हमें मैथ्स का क्लास यूज़ करना है, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है. तो वो ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? यू विल से मैथ्स m1 इक्वल्स टू न्यू मैथ्स. सिंपल मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया. नाउ व्हाट आई डू, आई विल चेक. सबसे पहले फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम देखते हैं. राइट? तो व्हाट आई विल डू, आई विल से लॉन्ग f इक्वल्स टू m1 डॉट फैक्टोरियल एंड आई विल पास सम नंबर, लेट्स से 5. तो मैंने 5 पास किया एंड आई वुड राइट सिस्टम आउट println एंड हियर आई वुड से f एंड आई विल प्रिंट दैट f. तो मुझे ये समझेगा कि 5 का फैक्टोरियल क्या है. लेट अस रन दिस. तो 5 का फैक्टोरियल इज 120. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. If I give 6 instead of 5, it will give me 720. Right? So factorial समझ गया. factorial कैसे आप यूज करोगे? Right? It is fairly simple. Right? Next is I'll check वो max वाला function. Right? So I'll say कि अब ये भी फंक्शन जो है आपका मैक्स वाला, ये भी क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर रिटर्न कर रहा है. राइट? तो इसको आप डायरेक्टली सिस्टम आउट println में भी ले सकते हो. राइट? एंड विल पास 2 नंबर्स. लेट्स से 5 and 10 मैंने पास किया तो इट विल रिटर्न मी 10, यानी ये b रिटर्न करेगा. तो आई कैन सिंपली से सिस आउट एंड आई वुड से मैक्स इज, and I can call m1 dot max and inside max I'll pass 2 number. let's say एक मैंने 5 भेज दिया, दूसरा मैंने 10 भेजा. right? so it should print me, ये कॉमा नहीं, यहाँ प्लस चाहिए. so it will print me 10. it should print me 10. right? so I get max is 10. instead of 5 if I give 15 here, it should print me 15. तो सिंपल इफ एल्स जो है वो समझ में आ जाता है इससे. राइट? सो व्हाट वी गॉट इज 15. नेक्स्ट चेक फॉर प्राइम. सो हाउ विल आई चेक दैट? फंक्शन में जाना, फंक्शन में चेक करना कि ये फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है. तो रिटर्न टाइप क्या है? बुलियन. बुलियन मतलब क्या? ट्रू और फॉल्स, येस और नो, ट्रू और फॉल्स. राइट? सो आई विल सिंपली चेक, आई विल से इफ, फंक्शन का नाम क्या है? इज प्राइम. सो आई विल से इफ is prime of say 5 equals to true. is prime नहीं है क्या फंक्शन? oh sorry, if m1 dot is prime, ऑब्जेक्ट यूज नहीं किया. So if is prime of I equals to true, I'll say system out println prime. Else I would simply say system out println not prime. है ना? तो ये 5 का चेक डाल रहे हैं हम लोग, 5 प्राइम है या नहीं. तो आना चाहिए प्राइम, बिकॉज 5 इज प्राइम. What you'll get here is prime. Right? Let us check for 9. So is 9 a prime number? No. So it should print me not prime. Instead of 9, if I give 19, so 19 is a prime number. Why? Because it is not divisible by any number starting from 2 up to 18. किसी से भी divisible नहीं है, इसीलिए 19 prime है. Right? So what I got is prime. राइट? तो दीज आर सिंपल प्रोग्राम जो बेसिक आपको लूप और इसका लॉजिक समझाते हैं.
इन्हें लूप्स कैसे यूज करना है, क्या करना है, ये वो चीज़ें बताते हैं, राइट. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी प्रैक्टिस सच प्रोग्राम्स, राइट. और ये सारे प्रोग्राम जो है आपको इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज. व्हाट दे वांट इज कि कोई भी लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो तो आप ये बेसिक ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स है जो आप करके बताओ. सो विल डू मेनी सच प्रोग्राम्स. तो लेट अस मेक इट अ हैबिट कि एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट क्लास वी डू सम न्यू प्रोग्राम, राइट, along with learning our object oriented concepts, right. That should be our focus. Is it clear? ये लॉजिक समझ में आया? ठीक है, great. I'll stop the recording.